Have you been wondering as to what does it take to reach from 60 percentile to 90 percentile and then 95 percentile and then 99 percentile in quant section of CAT? What are the topics and sections that are very important for this examination? What are the topics that are not so important? How many questions you should be attempting? What should be your accuracy level? If these are your genuine concerns, then this video is made for you. And by the way, my name is Amit and you're watching Aptitude360.online. First, try to understand as to how many questions you should be attempting to get your desired result. To make my point, I have taken 2018 paper of quant. There were 34 questions and the pattern was +3 and -1. So the total marks were 34 into 3, which is 102. And if you look at bottom of this table, a 60 percentiler needed to get only 10 to 11 marks. That's it. And to get 10 to 11 marks, you needed to solve only 4 to 5 questions. And as a matter of fact, if you get 10% of the total marks, you're in the league of 60 percentiler. And what are we talking about? To get from here to here, which is 90 percentile. And to get 90 percentile, the total score that was needed was 29 to 30. And 29 to 30 was very close to 30% of the total marks. And to be in the category of 99 percentile, the total marks were in the range of 43, 44, 45. And to get over there, one needed to solve only 16 to 17 questions. Now understand this. The journey from 3 to 4 questions to 9 to 10 questions to 15 to 16 questions would take you from 60 percentile to 90 percentile to 99 percentile. So I say this, from 4 questions to 11 questions to 15 questions. That is it. So this journey starts from 60 percentile to 90 percentile to 99 percentile. Can you at least reach from here? And that's pretty much possible if you focus upon those topics that are being consistently asked in the CAT examination. That's it. Now let us do the section wise analysis. In slot 1 of 2018 paper, you had 13 questions from arithmetic section, 6 questions from number system section, 7 questions from algebra, and similarly 7 questions from geometry. And surprisingly, you had only 1 question from permutation and combination. And if you look at arithmetic section, you got 3 questions from time, speed and distance and 3 questions from time and work. If you solve 10 to 11 questions, you are in the league of 90 percentile. And if you focus on these 2 topics only, you're getting 6 questions. And look at SI and CI. It gives you exactly 1 question all the time. Now you decide whether you want to prepare for this topic or not. But these 2 topics, in my understanding, are very important. Ratios and averages would also be giving questions. एक नहीं तो 2 नहीं, 2 नहीं तो 3. अगर ऐसा नहीं है तो किसी टॉपिक के साथ में इसको यूज कर देंगे. बट ये कहीं ना कहीं पे इसको यूज तो जरूर किया जाएगा. एंड लुक एट द टेबल, वी हैव नॉट मेंशन्ड 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक. वन इज परसेंटेज, द अदर इज प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये दोनों पूछे तो गए थे. प्रॉफिट एंड लॉस से इस पेपर में देयर वर 3 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दीज 2 questions needed an understanding of mixture and aggregation and 1 question needed an understanding of ratio and proportion. So I would say this: you have got percentage, percent, and then profit loss, and then ratios, and then mixtures and allegations. This combination will certainly get you 4 to 5 questions at least. But ये पूरा का पूरा cluster तैयार होना चाहिए. And if you somehow have prepared for percentage and ratios and averages, they will also be very helpful in the DI section also. तो इनकी प्रिपरेशन करने से क्या होगा, आपको ये मल्टीपल क्वेश्चंस में आपको यूज होगा. So what did I say is, if you're focusing upon arithmetic section, these are the 5-6 topics that you should be focusing upon: percentage, profit loss, averages, ratios, and then you have got time, speed, distance, and time and work. SICI will give you 1 question. You decide whether you want to do this or not. If you look at number system is a very tricky one. Now it has to be decided by what kind of background that you're coming from. You have to coming from mathematics background, फिर तो ठीक है. फिर तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, यू वुड बी वेरी इजीली बी डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. ये तो फिर आपके लिए
इन क्वेश्चन से भी सिंपल हो जाते हैं, बट अगर आपका वो बैकग्राउंड नहीं है फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। फंक्शंस विल गिव यू वन क्वेश्चन, नंबर थ्योरी एंड देन डिविजिबिलिटी एंड एक्सपोनेंट गॉट यू वन क्वेश्चन ईच। तो एक तो जो मिथ होता है ना कि नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अब आप देखो इन दोनों टेबल को, नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है, अरिथमेटिक से मिल रहा है। लुक एट अलजेब्रा सेक्शन एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, मेरे हिसाब से तो आपको अरिथमेटिक पे फोकस डालने के पहले आपको अलजेब्रा पे फोकस डालना चाहिए। और अगर आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आ रहे हो तो जो पहला फोकस आपका होना चाहिए वो होना चाहिए अरिथमेटिक सेक्शन पे, एंड देन योर फोकस शुड बी ओवर हियर। लॉगरिथम इज वन टॉपिक जहां से आपको कंसिस्टेंटली, मेरे को नहीं पता ये कैट को इतना ये टॉपिक इतना पसंद क्यों है, बट ये हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन तो देते ही देते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 34 हो जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 22 हो जाए, irrespective of that you always get 2 to 3 questions from this topic. Now see the set theory. Set theory is a very beautiful topic जहां पे आपको 2 क्वेश्चन तो यहीं से मिल गया। Set theory can also be utilized in the LR section. तो ये जो टॉपिक है अगर आपने ये पढ़ लिया तो ये दोनों जगह पे आपको काम आ सकता है। प्रोग्रेशंस वुड गिव यू वन क्वेश्चन, यहाँ पे तो एक क्वेश्चन दिया बट कहीं कहीं पे बाकी क्वेश्चंस के साथ में ये यूटिलाइज हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड प्रोग्रेशंस एंड सेट थ्योरी, तो अगर आपको अलजेब्रा की प्रिपरेशन करनी है तो मैं तो बोलता हूँ कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ डालो, आप लॉगरिथम्स पढ़ डालो, आप सेट थ्योरी पढ़ डालो, आप प्रोग्रेशन पढ़ डालो, इससे ज़्यादा पढ़ने की तो जरूरत भी नहीं है। लुक एट द जियोमेट्री सेक्शन। You had 3 questions. You had 3 questions from circles, 1 question from triangle, and 3 questions from the mensuration. So circles are very important. Circles and triangles. जो एंगल प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन थे वो कभी आते थे, बट नाउ डेज यू वॉन्ट बी गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम देम। बट होगा क्या कि वो 2 टॉपिक्स को कंबाइन करने की कोशिश करी जाएगी वहां पे। जैसे लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दिस पेपर। अब यहाँ पे वो इसको क्या कर रहा है, वो इस ट्राइंगल की क्वेश्चन पे वो उसने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इन्फिनाइट टर्म के टॉपिक को यूज कर दिया। तो यहाँ पे 2 टॉपिक्स एक साथ क्लब कर दिए गए। तो मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान से देखो तो अलजेब्रा पहले फोकस करो इफ यू आर फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, इफ यू आर फ्रॉम नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड आप अरिथमेटिक्स पे पहले के ऊपर बाद में फोकस करो, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ योर कंफर्टेबिलिटी यू मे चूज नंबर सिस्टम एंड देन ज्योमेट्री, राइट। नाउ the same analysis goes for slot 2 also. Slot 2 gave you 12 questions from arithmetic section, 5 questions from number system, 10 questions from algebra. Now the number of questions were more because you got 3 questions from sequence and series. अब sequence and series वाले questions ऐसे होते हैं ना जो वहीं पे डिसाइड होते हैं, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो फिर तो कोई बात नहीं है। And then from geometry further, if you look at the paper, the pattern got repeated 3, 1 and 1. And look at time, speed, distance, look at time and work. You didn't have any problem from averages, but then ratios got you 3 questions, mixture allegation got you 2 questions, SICI had you only 1 question. So I say that यहाँ पे वो जो हमने बात करी प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड रेशियोज, वो क्लस्टर और साथ में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो लॉगरिथम आपने फर्दर यू गॉट 1 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू गॉट 1 क्वेश्चन, फ्रॉम प्रोग्रेशन यू गॉट 1 क्वेश्चन एंड सेट थ्योरी गॉट यू 2 क्वेश्चंस। लुक एट द नंबर सिस्टम, यहाँ से वो वापस वो फंक्शंस वाले प्रॉब्लम आ गए, डिविजिबिलिटी रूल से कुछ नहीं आया, नंबर 3 से 3 क्वेश्चंस हो गए आपके पास में। यहाँ पे अगर आप एक्सपोनेंट और नंबर थ्योरी एंड फंक्शन की तैयारी करके रखो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। अगेन डिड यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन? नो। तो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आप थोड़ा साइड भी रखोगे ना फिर भी आपका काम चल जाएगा। लुक एट 2019 पेपर ऑफ स्लॉट 1। अगेन you got 14 questions from arithmetic, 4 questions from number system, 10 questions from algebra and 6 questions from geometry and coordinate geometry. So now probably you're understanding what are the sections that you should be focusing upon based on you have mathematics background or you have non-mathematics background, and what are the topics that you should be focusing upon. And look at these kind of questions. ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, अगर आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे मॉड एंड क्वाड्रेटिक इन दोनों को साथ में यूज किया हुआ था। आपको यहाँ पे द फंक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो मॉड एंड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों को साथ में यूज किया हुआ है. सो माई अंडरस्टैंडिंग इज दिस, प्रॉफिट एंड लॉस, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन. यहाँ पे देखो एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया था ये. इफ यू वांट दिस पीडीएफ, this PPT, I can share this on the Telegram channel. Join this one and I will be sharing this one. ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है. ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर जगह पे अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है. पिछले 10 सालों से मैंने ये पैटर्न देखा हुआ है और ये है बड़ा सिंपल सा. अगर आप इसको पढ़ डालो तो फिर आपका काम बन जाएगा. बट प्रॉब्लम क्या है, लोग परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से इतने डरे होते हैं कि उसको टच करने से डरते हैं वो. So this is what we had. Now understand that from what are the learnings. Learning number 1, अरिथमेटिक सेक्शन आपको हमेशा ही 35 से 40% क्वेश्चन दे के जाएगा, irrespective of how many questions that they are asking you. और यहाँ पे आपको क्या फोकस करने की जरूरत है, एक आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे फोकस डालो. टाइम स्पीड डिस्टेंस में एंड यू विल बी हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम ट्रेन प्रॉब्लम्स एंड देन बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम्स एंड गेम्स एंड रेसेस प्रॉब्लम्स एंड सर्कुलर मोशन. इन सारे के सारे टॉपिक को मिला के यू कैन बी, प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड दैट यू वुड बी गेटिंग सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड देन यू वुड बी हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम टाइम एंड वर्क ऑल्सो. पाइप एंड सिस्टम नेगेटिव वर्क से भी क्वेश्चन आपको मिलता है. एंड देन दिस क्लस्टर दैट आई टॉक्ड अबाउट. सो ये 3 क्लस्टर्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. एक है टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड अ क्लस्टर ऑफ दीज 4 प्रॉब्लम्स, राइट? So this is what I have to say, that my learning from algebra is आप log पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि log पे 2-3 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे. एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी फोकस डालो, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हमेशा मॉड वाले के साथ में आएंगे. सो मॉडुलस की अंडरस्टैंडिंग एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग थॉरोली बड़ी क्लियर होनी चाहिए. प्रोग्रेशन से यू विल बी हैविंग 2-3 क्वेश्चन, 1 और 2 क्वेश्चन. अगर ये नहीं आता तो कहीं ना कहीं पे इसकी कहीं पे यूज हो जाएगा. Set 3, as I said that आपको क्वांट में भी यूज आएगा एंड देन यू विल ऑल्सो बी हैविंग इट्स यूसेज इन LR सेक्शन ऑल्सो. सीक्वेंस एंड सीरीज अगर मेरे को एग्जाम में करना होता है ना, मैं वहीं पे चेक करता हूँ कि होगा नहीं होगा डिफिकल्टी लेवल पे. बस हाँ, प्रैक्टिस करके जाता हूँ, 30-40-50 क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस करके मैं जाता हूँ. देन यू हैव गॉट ज्योमेट्री एंड आई सेड दैट सर्कल पे आप फोकस डालो. सर्कल पे प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड्स एंड एंगल ऑफ सेक्टर्स, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ट्रायंगल पे क्वेश्चन पूछा जा सकते हो. सर्कल एंड ट्रायंगल तो पता करके रखो. बट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई शुड बी टेलिंग यू इज द पॉलीगन्स. पॉलीगन्स में भी हेक्सागन का एरिया क्या हो गया, हेक्सागन के इंटीरियर एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो गया. अगर आप ये पढ़ के रखो तो फिर आपका काम हो जाएगा. हेक्सागन भी करके रखो, ऑक्टागन भी करके रखो एंड दिस विल गिव यू सरप्राइजिंगली 1-2 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं. सर्कल एंड ट्रायंगल पे आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. हेक्सागन के साथ में इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया पता है तो फिर 1-2 क्वेश्चन आपका बन ही जाता है. एंड देन यू हैव गॉट मेंसुरेशन, एरिया वॉल्यूम प्रॉब्लम्स. अब एरिया वॉल्यूम प्रॉब्लम्स तो आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखो कि आप कितने क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करना चाहते हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे बड़ा हुपला बना के रखा जाता है ना नंबर सिस्टम का, कि भाई नंबर सिस्टम बहुत डिफिकल्ट है एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर अ लॉट, सो मेनी क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम नंबर सिस्टम. मिथ है ये. अभी के 3-4 सालों में तो मेरे को ये तो मिथ दिख रहा है. एंड इफ यू सी ऑन माई ऑन यूट्यूब चैनल आई हैव मेड अ प्लेलिस्ट ऑफ नंबर सिस्टम, जहां पे कम से कम 50 वीडियोस तो मैंने खुद के डाल के रखे हुए हैं. अब यहां से ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं तो पढ़ो, नहीं पढ़ने हैं तो मत पढ़ो, बट एक आध टॉपिक आप ये पढ़ सकते हो, जैसे रिमाइंडर थ्योरम हो गया. आई हैव मेड सम 10-11 वीडियोज ऑन नंबर्स रिमाइंडर थ्योरम. सो गो ऑन टू द यूट्यूब चैनल and open the number system playlist and try to watch these videos. So they are divisibility rule is something which is very important. Any which way कहीं ना कहीं पे ये तो यूटिलाइज होगा ही होगा आपको. फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स, नाउ फैक्टर्स पे आजकल क्वेश्चन कमी आ रहा है. एलसीएम एचसीएफ को यूटिलिटी कहीं ना कहीं पे हो जाती है. तो ये टॉपिक्स ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको छोड़ के चले आओ. नो, यू डोंट हैव टू डू दैट. इफ यू वॉन्ट बी हैविंग डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पे ये यूज होने वाले हैं, राइट? So this is what we had from this video. I hope now probably you have the clarity as to how many questions you should be attempting, what are the topics that you should be focusing upon based upon आपको कितना रिजल्ट चाहिए. आपको 90 परसेंटाइल चाहिए, आपको 95 परसेंटाइल चाहिए, आपको 99 परसेंटाइल चाहिए. बट 3-4 टॉपिक तो मेरे को हमेशा दिखते हैं ना कि आप इसको मिस कर ही नहीं सकते. लॉग नहीं मिस कर सकते, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं मिस कर सकते, टाइम एंड वर्क मिस नहीं कर सकते. तो ये 3-4 टॉपिक ना आप तो पहले यही साइड में रख के पहले इनकी प्रिपरेशन कर डालो, बाकी तो आप धीरे धीरे करते रहो. हाँ,
जरूरी है, रेशियो जरूरी है, एंड देन एवरेजेस जरूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ क्वांट में नहीं यूज होगा, ये तो आपको जाके डीआई में भी यूज हो जाएगा. So that's the end. Probably go in the comment box if you have learned something from this video, and tell me more about the other topics that you want me to make videos upon. And thank you very much for watching this one. Thank you very much.